ترکیے کے انتخابات کون لے گا بازی؟ انقرہ سے گراؤنڈ رپورٹ۔ ملت ٹائمز۔ افتخار گیلانی۔ ابھی تک رائے عامہ کے جو ابتدائی جائزے شائع ہوئے ہیں ان کے مطابق حکمراں اتحاد اور اپوزیشن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ ترکیے میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا بگل بج چکا ہے۔ حال ہی میں صدر رجب طیب ایردوغان نے پارلیمنٹ اور اپنی صدارت کی مدت ختم ہونے سے ایک ماہ قبل ہی یعنی کو انتخابات منعقد کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ چونکہ یہ انتخابات ایردوغان کی قسمت کا فیصلہ کریں گے اس لیے پوری دنیا کی نگاہیں ان پر ٹکی ہوئی ہیں۔ کئی بین الاقوامی جریدے ان انتخابات کو ایک سن میل قرار دیتے ہیں جس کے نتائج نہ صرف خطے پر بلکہ بڑی پوری دنیا پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایردوغان کے دور میں اسلامی دنیا کی لیڈرشپ حاصل کرنے کی خواہش کے علاوہ جس طرح ترکیے نے اپنے مفادات مشرق وسط ایشیا حتیٰ کہ جنوبی امریکہ تک وسیع کیے ہیں اور پھر حال میں روسین اور یوکرین کی جنگ میں مغرب اور روس کے درمیان رابطہ کی کڑی کے بطور کام کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ انتخابات خاصی اہمیت حاصل کر گئے ہیں۔ روس سے میزائل شیلڈ خریدنے اور ناٹو کا ممبر ہونے کے باوجود امریکہ کے ساتھ تعلقات میں آئی سرد مہری کے علاوہ یونان کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے مغربی دنیا ایردوغان کے دور کے خاتمہ کی خواہاں ہے اور امریکی انتخابات سے قبل صدر جو بائیڈن تواس کا برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ ابھی تک رائے عامہ کے جو ابتدائی جائزے شائع ہوئے ہیں ان کے مطابق حکمراں اتحاد اور اپوزیشن کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہونے کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ صدر کے علاوہ تک یہ کہ ووٹر 621 پارلیمنٹ کو بھی اسی دن منتخب کریں گے۔ گو کہ پارلیمانی انتخابات کے لیے تقریباً 126 بڑی سیاسی جماعتیں قسمت آزمائی کریں گی، مگر صدارتی انتخاب کے لیے 14 جماعتیں مختلف اتحادوں میں شامل ہے کر زور آزمائی کریں گی۔ 1923 میں جب مصطفیٰ کمال اتاتürک نے ترکیے کو ایک جمہوری ملک ڈکلیئر کیا تو ہندوستان اور پاکستان کی طرز پر ایک پارلیمانی نظام کی داغ بیل ڈالے، مگر 2016 میں فوجی بغاوت کو شکست دے کر جب ایردوغان اپنی مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہے تھے تو انہوں نے اس کے اگلے سال ریفرینڈم کے ذریعے صدراتی نظام کو لاگو کروایا، جس کے نتیجے میں جون 2018 میں پہلی بار براہ راست صدارتی انتخابات منعقد ہوئے۔ گو کہ ایردوغان 2014 میں ہی وزارت اعظم سے الگ ہے کر صدر کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے، مگر 2018 تک یہ عہدہ نمائشی ہوتا تھا۔ اس انتخاب میں ایردوغان کو 52-51% ووٹ حاصل ہوئے۔ ترکیے کے آئین کے مطابق جیتنے والے صدارتی امیدوار کے لیے 50% جمع ایک ووٹ لانا لازمی ہے۔ اگر کسی بھی امیدوار کو مطلوبہ ووٹ نہیں ملتے ہیں تو دوسرے راؤنڈ میں پہلے 2 نمبروں پر آنے والے امیدواروں کے درمیان ایک بار پھر انتخابی مرکہ آرائی ہوگی۔ مزید کوئی صدر اپنی 2 ٹرم مکمل کرنے کے بعد انتخابات میں بطور امیدوار کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید اسی لیے ایردوغان نے انتخابات کی تاریخ 1 ماہ پہلے ہی رکھی ہے تاکہ وہ پھر سے امیدواری کے اہل ہو جائیں۔ چونکہ اپوزیشن عدالتی چارہ جوئی کے لیے کمر کس رہی ہے، ایردوغان کا کہنا ہے کہ ان کی صدراتی مدت کا تعین 2018 سے نہ کہ 2014 سے کیا جائے، کیونکہ ریفرینڈم سے قبل تو وہ بس نمائشی صدر تھے۔ اگر ترکیے کے سیاسی منظرنامہ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ موٹے طور پر میدان میں 2 سیاسی اتحاد ہیں۔ ایردوغان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ یعنی آک پارٹی کی قیادت میں 4 جماعتی اتحاد کا نام جمہوری اتحاد یا ڈیموکریٹک الائنس ہے۔ دوسری طرف سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی یعنی CHP یا جہیپے کی قیادت میں 6 رکنی ملیہ قومی اتحاد ہے۔ اتاتürک کی قائم کردہ CHP نے پچھلے 100 سالوں میں سب سے زیادہ مدت تک حکومت کی ہے اور کل 27 میں سے وزراء اعظم اسی پارٹی کے برسر اقتدار رہے ہیں، مگر یہ پارٹی اب 1979 سے اقتدار سے مسلسل باہر ہے۔ ایردوغان کی آک پارٹی اسلامسٹ رفاق ویلفیئر پارٹی کے بکھرنے کے بعد تشکیل میں آئی تھی۔ رفاق پارٹی کے صدر نجم الدین اربکان 1996 میں وزیر اعظم منتخب ہو گئے تھے، مگر اگلے سال ہی فوج نے ان کا تختہ پلٹ دیا۔ چونکہ اسلامی پارٹیوں کو انتخابات میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، اس لیے ایردوغان نے سینٹر رائٹ نظریہ کو اپنا کر قسمت آزمائی کی اور 2002 سے الف نون کی پارٹی مسلسل اقتدار میں ہے۔
हुक्मरान इत्तेहाद के दीगर अरकान में दौलत बाचेली की कौम परस्त MHP, मुस्तफ़ा दस्तीची की इस्लामिस्ट ग्रेट यूनियन पार्टी और दोगो पंजक की बाएं बाजू के नजरियात की वतन पार्टी है। दूसरी तरफ CHP की क़यादत में अपोजिशन मिली इत्तेहाद में सेंटर राइट गुड पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, इस्लामिस्ट सादत पार्टी, साबिक वजीर खजाना अली बाबा जान की देव अलिफ पार्टी और साबिक वजीर आजम अहमद देवतोलो की फ्यूचर पार्टी शामिल है। इस 6 रुकनी इत्तेहाद को टेबल ऑफ सेक्स के नाम से भी जाना जाता है। बाबा जान एर्दोगान के इब्तिदाई दौर में उनकी काबीना में वजीर खजाना थे और हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह की तरह माशी इस्लाहात, जिन्होंने तरक्की में खुशहाली का दौर शुरू किया, के खालिक तस्वुर किए जाते हैं। वो 2007 से 2009 तक वजीर खारजा भी रहे। इन 2 इत्तेहादों के अलावा सबसे अहम गर्दों की पार्टी HDP है। फ़िलहाल वक्त इस पार्टी के पार्लियामेंट में 56 अरकान हैं और उसके पास 8 से 12% वोट है। फ़िलहाल इस पार्टी ने किसी भी इत्तेहाद को हिमायत देने से इनकार कर दिया है और इंदिया दिया है कि वो अपना उम्मीदवार सदराती इंतखाब में मैदान में उतारेगी। अगर इंतखाब दूसरे राउंड में पहुंचता है तो इस पार्टी की हिमायत किसी भी उम्मीदवार को जताने के लिए फैसला कुन किरदार अदा करेगी। इसके लीडर सलाउद्दीन दीमरियस 2016 से जेल में बंद हैं। अपोजिशन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अभी तक एक मुश्तरका सदराती उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पा रही है। हाल ही में 26 जनवरी को अंकारा में 6 पार्टियों की 10 घंटे तक चलने वाली मीटिंग भी उम्मीदवार का फैसला नहीं कर पाए। अब अगली मीटिंग फरवरी के वस्त में होने वाली है। CHP के सरबराह कमाल कुलीची दारविलो के नाम पर इत्तेफाक राय शायद ही मुमकिन हो पाएगा। एक तो उनका लो प्रोफाइल नेचर, फिर उनका अलवी बैकग्राउंड इनको एक हाई प्रोफाइल उम्मीदवार एर्दोगान को सख्त मुकाबला देने की सकत शायद नहीं दे सकेगा। उनके अलावा CHP के ही इस्तांबुल के मेयर इकराम इमाम उलू और अंकारा के मेयर मंसूर आवाश मजबूत उम्मीदवारों के बतौर उभर रहे हैं। चूंकि तुर्की में सूबाई हुकूमतें नहीं होती हैं, इसलिए मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के मेयर का मकाम मुल्क की सियासत में वही है जो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान में पंजाब के वजीर आला का होता है। अपोजिशन इत्तेहाद में गुड पार्टी की सरबराह मीराल इक्सीनर भी मुश्तरका उम्मीदवार के बतौर हिमायत हासिल करने के लिए खासी तगओदो कर रहे हैं। दारुल हुकूमत अंकारा में मुख्तलिफ जगहों पर उनके पोस्टर आवेजा नजर आते हैं। वो वजीर दाखिला और नायब स्पीकर भी रह चुकी हैं। इमाम उलू को अभी हाल ही में एक अदालत ने 2019 में इलेक्शन कमीशन की तौहीन के एक केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। गो की ऊंची अदालत ने इस फैसला पर रोक लगाई है, मगर तज्जियाकारों का कहना है कि ये उनको सदारती उम्मीदवार की दौड़ से बाहर करने की कोशिश थी, मगर ये उनके लिए एक नेमत ही साबित हुई है। सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद इवज़तर के मुताबिक इस फैसला से इमाम उलू को हमदर्दी का वोट और अपोजिशन को अपने आप को मजलूम साबित करने का मौका मिला है। ऐसा ही कुछ कई दहाई कब्ल एर्दोगान के साथ भी हुआ था, जब वो इस्तांबुल के मेयर थे और उनको कैद कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊंचा होता गया, हत्ता कि वो वजीर आजम और फिर सदर बन गए। हाल ही में जारी राय आमा के जायजे के मुताबिक अपोजिशन कौमी आमिली इत्तेहाद को 42.6%, जबकि हुकूमती जमहूरी इत्तेहाद को 38.2% वोट मिलने की तवक्को जाहिर की गई है। मगर एर्दोगान की आक पार्टी अभी भी 32% वोट लेकर सबसे आगे है, जबकि CHP 23.5% वोट लेकर काफी पीछे है। इसलिए एक मजबूत इत्तेहाद ही अगले सदराती उम्मीदवार का फैसला करेगा। चूंकि अपोजिशन ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, इसलिए राय आमा का जायजा मुरतब करने वालों का कहना है कि अभी नताइज का अंदाजा लगाना कब्ल अज वक्त होगा। मगर ये तो तय है कि अब तक हुई माशी सूरत हाल ने एर्दोगान के लिए मुश्किलात खड़ी की है। अभी हाल ही में मुन्ह भराई के लिए कम अज कम उजरत 8,500 तुर्किश लीरा यानी $445 की गई है। आक पार्टी के तर्जुमान उमर जीलू के मुताबिक अगले चंद माह में ऐसे कई और इकदामात किए जाएंगे जिससे अवाम को माशी भंवर से निकलने में मदद मिल सकेगी। 2019 में 4 लीरा का $1 होता था, जो अब बढ़कर 18 से 20 लीरा तक पहुंच गया है। चूंकि तुर्की की मईशत ग्लोबल मार्केट से मरबूत है, लीरा की तनज़्ज़ुली का असर हर शोबा जिंदगी पर पड़ा है।
मकानों की किराया से लेकर अशियाए खुर्दनी तक महंगी हो गई है। माहिरीन का कहना है कि एर्दोगान की मुसलसल कामयाबी का राज ही मुल्क को माशी इस्तेहकाम देने में पोशीदा है। इनके इब्तदाई 10 सालों में यानी 2013 तक फीकस आमदनी $12.582 सालाना पहुंच गई थी। 2003 में यह बस $4.739 थी। इसकी वजह से आबादी का एक बड़ा तबका गरीबी की लाइन से बाहर निकल गया। इसके बाद आलमी कसाद बाजारी ने पांव जमा लिए, मगर इन इब्तदाई 10 सालों में दूर रस पॉलिसियों की वजह से जो ढांचा बन गया था उसने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को बरकरार रखने में मदद दी। इसके अलावा सियाहत के शोबा ने भी खासी तरक्की की। तुर्की दिफाई साज व सामान तैयार करने वाला एक अहम मुल्क बन गया। इस आसूदगी की वजह से एर्दोगान ने पूरी आबादी को सोशल सिक्योरिटी नेट में शामिल कर दिया, यानी मुफ्त सेहत आमा की सहूलियत, सरकारी और प्राइवेट दफातर में मुलाजमीन को दिन का एक खाना मुफ्त खिलाना लाजमी रखना, बुजुर्गों के लिए मुफ्त रोटी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियत, नौजवानों के लिए मुफ्त तालीम और ग्रेजुएशन के बाद 1.5 साल तक बेरोजगारी भत्ता, कौमी त्योहारों और ईदैन के 3 दिन शहरों में मुफ्त ट्रांसपोर्ट कुछ ऐसे इक़दामात थे जिन्होंने एर्दोगान के इक़्तिदार को दवाम बख्शा। दूसरी तरफ एर्दोगान के इब्तदाई दिनों में तुर्की ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए जो मुज़ाकरात शुरू किए, उनकी वजह से जो इस्लाहात करनी पड़ी, इससे लोकल बॉडीज को इख्तियारात तफवीज़ करना और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद मिली। ये मुज़ाकरात अब अरसे से तातुल का शिकार हैं। मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एर्दोगान ने हाल के अरसे में इख्तिलाफात को पसपुश्त डालकर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात के साथ ताल्लुकात को दोबारा उस्तवार किया और लग रहा है मिस्र और शाम के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की सही हो रही है। तुर्की के 4 खतों में अनातोलिया या ईशाकूचक एर्दोगान की सियासत का वोट बैंक माना जाता है। ये खित्ता निहायत गरीब और दीगर खतों के मुकाबले पसमानदा माना जाता था। इसी खित्ते की आबादी का मेयार जिंदगी एर्दोगान ने ऊंचा करके उनको इस्तांबुल और दीगर खतों के अशराफिया के मुकाबले खड़ा कर दिया। दीगर खतों में बहर अस्वद का साहिली इलाका कारादीन्स और बहरूम के किनारे वाला इलाका आकादीन्स है। यूरोप के इलाका को थ्रीस एट्रिकिया कहते हैं। अशराफिया का ये इलाका अपोजिशन CHP का गढ़ समझा जाता है। माशी खुशहाली के अलावा सियासी मैदान में एर्दोगान की सबसे बड़ी कामयाबी तुर्की की सियासत में फौज के किरदार को खत्म करना है। इस मुल्क में कई बार फौज ने मुदाखलत की और अदालतों के जरिए भी कई सिविलियन हुकूमतों को बर्खास्त करवाया। मुसन्निफ साइम कुरुबास के मुताबिक 1960 से ही फौज ने 4 हुकूमतों को बर्खास्त किया और कई वज़राए आज़म को नजरबंद कर दिया। 14 मई 1950 को मुल्क के पहले कसीर जमाती इंतखाबात में अदनान मीनदरस वजीर आज़म मुंतखब हो गए थे, मगर 1960 में उनका तख्ता पलट दिया गया और नजरबंदी के 1 साल बाद उनको एमरली जजीरा में तख्तादार पर लटकाया गया। एर्दोगान ने शायद इसीलिए इंतखाबात की तारीख में रखी है। एमरली जजीरा को अब डेमोक्रेसी आइलैंड के नाम से जाना जाता है और हर साल को यौम जमहूरियत मनाकर अदनान मीनदरस को याद किया जाता है। कुरुबास का कहना है कि एर्दोगान को ताकतवर फौज को सिविलियन वजारत दिफा के मातहत करने के लिए तारीख में याद किया जाएगा। इसके दौर में आईन में तरमीम करके मार्शल को नाफिज करने की दफात को ही मनसूख कर दिया गया। इसके अलावा 17 रुकनी आईनी अदालत में 2 जज फौज के होते थे। इस रवायत को भी खत्म कर दिया गया और अब सभी जज सिविलियन होते हैं। ताहम एर्दोगान के नाकदीन का कहना है कि 2018 के बाद एक शख्स वाहिद के हाथ में ताकत मरकूज हैकर एहतसाब के दरवाजे बंद हो गए हैं। बरा रास्त सदर के मुंतखब होने से पार्लियामेंट का रूल ही खत्म हो गया। फौज से छुटकारा तो मिला, मगर सिविलियन आमिराना निज़ाम कायम हो गया। इसका बरा रास्त असर मईशत पर भी पड़ा। 2 वज़रा खजाना और 3 सेंट्रल बैंक के गवर्नर बरतरफ किए गए, जिससे सरमायाकारों का एतमाद मुतज़लज़ल हो गया। गो के तर्क इस पर मुतफ़िक हैं कि पिछली 2 दहाइयों से तुर्की ने जो तरक्की की है और अक़वाम आलम में जो मकाम बनाया है, वह एर्दोगान की दीन है। मगर अक्सर नौजवान तुर्कों का ख्याल है कि एर्दोगान ने पास जो कुछ था वो सब वो दे चुका है, अब इसके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं है।
सितम ज़रीफ़ी ये है कि मईशत ने ही एर्दोगान को मकबूलियत की बुलंदी तक पहुंचाया और अब यही मईशत इसके ज़वाल का सबब भी बन रही है। मगर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि एर्दोगान अपने पटारह से किसी भी वक्त कुछ ऐसा निकालने की ताकत रखता है जिससे मुखालफीन के होश उड़ सकते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि इसको टुकर देने के लिए अपोजिशन इसके हमपल्ला कोई उम्मीदवार अभी तक लाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर, बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, लीग आउट की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, आप एंटरटेनमेंट की कोई